we have organized a guest speaker session today for drugs and mental health. A warm welcome to all of you for attending this session. I'm very thankful for all of you. Having a discussion with the students over there. So I've been told that this session is going to be really interactive. So I don't know if the COVID allows me to come over there within the audience. There are two ways. You people are going to decide how to do it. What do you think? To begin with, are you comfortable to come issues या concerns or the problems? अगर आप लोग उसको highlight करना चाहते हैं, so let's come up with those. Watch it carefully. What did we see? Addiction. How can wants turn into needs? Addiction can kill us. How can wants turn into needs? How can wants turning into needs, or And how needs are very dangerous for us. It kills needs us. are really dangerous for us? Like Needs regarding what kind of things? needs regarding addiction. Like any addiction is dangerous, I believe. इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, what is addiction? What is Excessive it? use of something? It is excessive use of something, or D. What is addiction? आदत, जी बिल्कुल ठीक है, और आदत है, एक्सेसिव यूज है किसी चीज का, और सो आदत तो बहुत सारी चीजों की होती है, सारी की सारी आदतें जो हैं वो एडिक्शन की तरफ जो है निकल जाती है, क्यों जी? The difference between आदत and addiction. जी प्लीज माइक जी. Your likings turning into habits or needs. And then That could be addiction. Like
For example, if you're liking something at first, but then it becomes your need. Then it becomes your need. Okay. Yes. Then it is called addiction. Then it is Yeah. addiction. I mean, like this is called addiction. This is called addiction. और इसमें कोई और ऐड करना चाहिए, इसमें कुछ ऐड कीजिए. Without them, you cannot survive. So without, that's the feeling of a person. Okay, without drugs, I won't be able to survive even. और जी? Every time we take it, we want more and more. More and more and more. It goes on and on and Yeah. on. ठीक है, बिल्कुल ठीक. अच्छा, नीड को भी कैसे डिफाइन करेंगे? How do we define a need? Then if someone wants really more than that. So psychology के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास Yes. या? Yes. या क्योंकि फिर मुझे उस लिहाज से मैं टर्म ना यूज करूँ अगर साइकोलॉजी वाले हैं या मिक्स है सारा गैदरिंग. इट्स अ मिक्स गैदरिंग. अच्छा, ओके. नहीं तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो मैं पूछूं उनसे कि आया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है एज फार एज एडिक्शन इज कंसर्न. Haven't अच्छा, started नहीं yet. एज फार एज योर आंसर्स आर कंसर्न, ऑफ कोर्स यस. सो किस तरह से अप्लाई करेंगे जो आपने वीडियो देखी? तो फर्स्ट इट इज लाइक अ लाइकिंग, एक जर्नी है. इट्स अ लाइक अ प्रोसेस. एडिक्शन इज अ प्रोसेस. सो it starts with like I need something, I want something, or due to so many other reasons. कोई स्टार्ट की तरफ जाते हैं. वो लाइकिंग अगर मैं कहूँ कि वो लाइकिंग कैसे डेवलप होती है तो Something that makes it you feel is good. a combination of please. Something that makes you feel good. Something that makes you feel You will good eventually start liking it. and you eventually start liking it. ठीक है, कहाँ से आता है? इसको आगे थोड़ा सा नेक्स्ट कैसे स्लाइड की तरफ हम मूव करेंगे. ओके या सर जी, मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन हो उनका आंसर अब आपकी कॉमन सेंस पर है कि आप किस तरह से इसको जो है वो देखते हैं. या ये जो एडिक्शन होती है ये डिपेंडेंसी भी होती है, कंसिस्टेंसी बन जाती है हमारी. ये डिपेंडेंसी है, ऑफ कोर्स डिपेंडेंसी है. इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर अ पर्सन हु इज बीइंग हुक्ड ऑन ड्रग्स. ठीक है, ओके. लेकिन इट्स अ जर्नी, माइंड इट. इट्स अ जर्नी और जो स्टार्ट होता है विद सम क्यूरियोसिटी. ऐसा ही होता है. जब आपकी एज है ना, ये एज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी है सारी की सारी. पीपल जस्ट वांट टू टेस्ट, जस्ट वांट टू नो एनीथिंग. लेट्स हैव इट, लेट्स हैव इट. देखिए ये क्या है, हर चीज़ आप जानने की कोशिश में वो करते हैं. एंड डू यू पीपल नो कि इन सम पर्सन्स ये जो क्यूरियोसिटी का एलिमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है. क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो बैठे हैं. आप बहुत सारी चीज़ों की क्यूरियोसिटी जो है वो रखते हैं, लेकिन कोई एक तरफ जो है वो जाएंगे फूड की तरफ. यहाँ ग्रुप के 3-4 लोग ये कह रहे होंगे जस्ट लेट्स ट्राई इट आउट, लेकिन अदर कहेंगे यार छोड़ो पीछे, वो फलाने नहीं किया था हम नहीं करने जा रहे. तो क्यूरियोसिटी का लेवल भी डिफरेंट है. और फिर ये प्रेशर एक सामने आता है, उसमें से 8 में से 2 लोग और उसमें आ जाते हैं. वो जो 4 वाले जो हैं 4% जो बहुत क्यूरियोसिटी उनके अंदर है और उनको भी खींचते हैं चलो यार लेट्स ट्राई इट आउट. और क्या होता है इसके बाद, और वो चीज़ें उस तरह से स्टार्ट जो है वो होती हैं. तो यार लॉट ऑफ रीजंस कि जिसकी बिना पर कोई ड्रग्स को स्टार्ट जो है वो करता है. या दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी. माइंड इट. Opposite, it's not, I think it's absent in this slide. To feel good, to feel better, to do better, and last not least is the curiosity. And because other person they are doing let's try it out. But the other story we have just opposite. If someone is in pain, in depression, having some kind of physical illness, and or some kind of psychological illness, वो भी ड्रग्स की तरफ उनके भी जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं. But do you think this is enough? These reasons are enough for a person to become addicted? What are the other things that are required for a person to become addicted to a substance? और क्या हो सकता है? या जी, एक तो ये हो गया ये रीजन. तो बहुत सारे लोगों के में होते हैं. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर आए, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई पेन में से वो गुजर रहे हैं, मे बी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल. तो क्या वो सबके सब ड्रग्स की तरफ जाएंगे? सर मोस्टली जिनके ब्रेकअप्स होते हैं और जी. जो अपने ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं समटाइम्स Okay. वो भी एडिक्शन के लिए मतलब ड्रग्स यूज़ करते हैं टू फील बेटर इन दैट वे कि मुझे इस सबसे अलग फील करूँगा, मैं मुझे ये सब सोसाइटी से दूर रहना है.
मुझे इम्प्रूव रहना है, तो ड्यू टू सम इंटरनल मैकेनिज्म, Internal. कोई पास्ट एक्सपीरियंस, वेरी ब्रिलियंट, कोई ब्रिलियंट पास्ट एक्सपीरियंस को ऐसा है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग गुड, समटाइम्स अ पर्सन मे हैव सम traumatic childhood, may belong to some dysfunctional families, may be having a history of abuse of any kind. So again, do you familiar with the word abuse? Yes. So worst form abuse की जो है वो क्या है? Emotional abuse. Emotional abuse like bullying Like or torture, emotional torture. torture. By Is the it a- gestures and stuff. Sorry. By the gestures of family members or By maybe the family others. members. The worst form of abuse is neglect. याद रखिए. Yes, denial. और ये neglect कौन सी एज से स्टार्ट होता है? Very beginning. Childhood. Childhood means क्या एज है childhood की? जैसे हम डिफाइन करते हैं. 5-6 years. But if I say कि Teenager. ये first year of life जो है, वहाँ से childhood start होता है. और neglect जो first year है और even the first month है, वो भी बड़ा important part है हमारी लाइफ का. अगर वहाँ पर हमें neglect मिलता है, neglect means कि parents they are busy, कभी इधर हैं कभी उधर, their mother is busy, father is busy, वो earning में हैं, other chores में है, वो इसमें है. But अक्सर हमारे बच्चों को होता है ना, बच्चों में बच्चा रो रहा होता है तो माँ क्या कहती है, घर वाले क्या कहती हैं, इसको ज़रा रोने दो, इसको उठाओगे तो आदत बढ़ जाएगी, लिहाजा इसको रोने दो, खुद ही रो के चुप हो जाएगा. एक्सपीरियंस किया कभी, देखा इस तरह का एटीट्यूड हमारे माशरे में. सो दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट. और द इमोशनल नीड्स, आई टोटली एग्री विद यू कि इमोशनल नीड्स जब तक फुलफिल नहीं होती तो सम थिंग्स कुछ हो जाता है अंदर सारा, और वो गैप रह जाता है जिसको फिल करने के लिए लेटर ऑन क्यूरोसिटी जो है वो डिवेलप जो है वो होती है. तो रूट सिर्फ याद रखिएगा एज फार एज एडिक्शन इज कंसर्न्ड, उसकी रूट सिर्फ उस माशरे या उस ग्रुप के साथ नहीं है, उन लोगों के साथ नहीं है कि जो ड्रग जो है वो यूज़ कर रहे हैं. इसकी रूट बहुत पीछे जो है हो जाती है, चाइल्डहुड में जो है हो जाती है. और वहीं पर अगर मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया डिसफंक्शनल फैमिली, कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी जब हिस्ट्री आप जो है वो लेते हैं तो दे बिलोंग टू अ डिसफंक्शनल फैमिली. सो व्हेन आई से डिसफंक्शनल फैमिली मींस व्हाट? Separation of. आप ही से सारे आंसर जो है वो आ रहे हैं, बाकी उधर से कोई आंसर जो है वो नहीं आ रहा. आपको इसलिए तो नहीं रखा कि आप उनको आंसर दीजिएगा. डिसफंक्शनल फैमिलीज क्या होती हैं? सिंगल पेरेंट्स की बात आप कर रहे हैं, फैमिलीज में क्या नॉट, और अगर उसमें अब्यूज़ है, अगर डिसफंक्शनल फैमिली है, अब्यूज़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है होगा सारा. तो अब्यूज़ फिजिकल भी है, अब्यूज़ इमोशनल भी है, एंड अब्यूज़ सेक्शुअल भी है. ये भी एक ऐसा पार्ट है कि जिसको हम निगलेक्ट जो है वो कहते हैं. अक्सर जब हम अपनी पेशेंट्स को असेस कर रहे होते हैं तो अराउंड 40-50% केसेस में सेक्शुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री जो है मौजूद होती है, और वो जो पेन कहीं भी उसके अंदर से जो है वो नहीं जाती, वो स्ट्रेस करते हैं. और एज फार एज चाइल्डहुड इज कंसर्न, लेकिन जब उनका कॉन्शियस डेवलप हो रहा होता है तो उस वक्त वो पेन और ज़्यादा उनको फील होती है, एंड दे देन स्टार्ट ट्राइंग समथिंग टू नम दैट पेन. तो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स. सो डिसफंक्शनल फैमिलीज आई, ट्रॉमा आया, अब्यूज़ आया, निगलेक्ट इज देयर, और अभी सेपरेशन की बात हुई थी. कोई भी हादसा जो है फैमिली में जो है ऐसा हुआ तो ये ग्राउंड हम बार हो रही है, बच्चों को वो नीड, उनकी नीड्स जो है वो फिलफिल जो है वो नहीं हो रही. तो यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उस पेन के साथ मूव करते हैं माशरे. So I have two questions. Okay, so one is out of context, and the second one is basically related to what you were saying right now. Like you said that you have there are family backgrounds of people that are going into abuse and certain kind of things. But what I've seen is a lot of people that are into abuse or that have sexual abuse in their childhood also, but they haven't gone into addiction. Of course, but they have gone into a positive or we could say optimistic side of life. So how can you say? How can you relate addiction to only to the bad things? Because I've seen people even in the circles that I'm in, they belong from very reputable families and they belong from very rich families, and their upbringing is also it's tarbiyat achhi hui hai, but still they have gone into drugs and drug abuse. So how can you say that drug abuse is related to a negative side of things that has happened before in their lives and being and the vice versa, to be honest? Yes, sir. Okay, so एडिक्शन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इससे पहले कि आपकी तरफ या रिसर्च है इस बारे में, आई टोटली एग्री विद यू. मैंने एक एक्सट्रीम की बात जो है वो की है
कि जिसमें कॉपी करते हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत वीडियो भी है, वीडियो सर्च कीजिएगा आपको जो मिलेगी, एक्सट्रीम्स की तरफ बच्चे जो है वो जाते हैं। बनाइए कि फैमिली ट्री आपका क्या है, आपके फादर्स, फो फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, उनका कैसा रिलेशनशिप था, किन किन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमें पता चलती हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उस फैमिली में स्टिग्मा अटैच्ड है विद द ड्रग्स, तो ऑफ कोर्स यस कि वो बच्चे ड्रग्स की तरफ तो शायद ना जाएं। बट व्हाट अबाउट द अदर एडिक्शंस? और कौन सी एडिक्शन होती हैं? There are a lot of addictions. Phone addiction. Gambling, phone addiction, internet, food addiction, so beautiful. Attraction to other people. Attract. Okay, when you say attraction means like love addiction? Yeah. Love and sex addiction? Are you okay with my answer? So, what's missing? Sir, no, what I was trying to say is that like people that are coming from good families, they're coming from good social circles. But what happens is that I'm not talking about behavioral addiction. I'm talking about substance addiction, like marijuana, ice, those types of things. No. They go into that. Even if they're coming from good जरूरी नहीं है कि वो सब्सटेंस की तरफ जाएं। ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। Sir, I have seen such type of people because they were in my circle, so that's why I'm trying to tell you. इधर माइक दीजिए। So basically, he's talking about that some people from good families also turn into substance addicted. Yeah. For that, I think it's the curiosity which plays a part, because when everything is going very right in your life, there is something you want, something new. You want to try something new, because at a point you will stop feeling things, because everything is so perfect. What makes our life special is the imperfection. So I think that is the curiosity which makes a part. पता नहीं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हमने एडिक्शन को सिर्फ पुअर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में सिर्फ जो है वो कॉर्नर कर दिया तेरा, क्या ऐसा है? डिजीज एडिक्शन इज, अभी हम वो जो डेफिनेशन है अभी हम उसकी तरफ नहीं गए। सो दिस इज अ ब्रेन डिसऑर्डर है, सोशल फैक्टर्स हैं एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो ये जहन से निकाल दें कि एलीट क्लास में लोग नहीं जा सकते एडिक्शन की तरफ, बहुत ज़्यादा ड्रग ऑफ चॉइस डिफरेंट हो सकती है, या बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, या एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन when we say about compulsivity part और obsession का जो part है, that is very much common in every type of addiction. Especially in the elite class, people take dancing pills, which People makes take- them dance. Dancing pills. हाँ, party they drugs just है ना, take it. different है ना, different. So yeah, Designer it's drugs more हैं, common than the rest. तो than जरूरी नहीं, लेकिन drugs are just yeah, drugs. exactly. क्योंकि जब कोई ड्रग स्टार्ट करता है, द मोस्ट एडिक्टिव ड्रग कौन सी है? द मोस्ट टॉप के ऊपर द मोस्ट एडिक्टिव ड्रग लव, इधर से है लव, सेल्फ हार्म ड्रग सब्सटेंस। Cigarette. ये सिगरेट कहाँ से आया है? Of course yes, the most addictive जो है वो निकोटीन एडिक्शन है। And it's the cheapest also. That is the cheapest drug. So निकोटीन टॉप पर है, हालांकि हम सब निकोटीन को साइड पे करते हैं, उसके बाद फिर कहीं और जो वो निकल जाते हैं सारा। So निकोटीन इज वो हार्डेस्ट ड्रग। मैं अली को ना अपने साथ बुला दूँ, क्योंकि उस प्रोसेस में से गुजरे हैं, तो मुझे टाइम हमारे पास। My name is Mohammad Ali and I'm an addict. I'm a recovering addict basically. And जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर सुना था, मैं खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा था कि कितना है, मतलब मैं भी इस एज से गुजरा हूँ, आप लोग की यूनिवर्सिटी में था, तो मतलब आप लोग तो फिर भी सही है, मैं तो हाई बैठा हुआ था जब ऐसे कोई सेमिनार हुआ करते थे। तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई कोई पूछ रहा है कि भाई किसी का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड नहीं है लेकिन फिर भी वो एडिक्ट है, किसी का ट्रॉमेटिक चाइल्ड है फिर भी वो एडिक्ट है, तो थ्योरी सही कौन सी है? I want to ask one question. There are different types of drugs, and antidepressants are also drugs. And to some point, they help people to cope up with their life. But I have seen people who take depressants all of their life, and at a point they become so addicted of them that they cannot live without them. So how is it that helping them? I mean, at first it was there to help them now, but if they are not to begin with. but if they are addicted. As I said,
कि वो जो ट्रांजिशन थी ना उसमें यूज से लेके अब्यूज और देन डिपेंडेंस की तरफ, it's genetically determined. But then again about the tolerance thing, don't you think if you are taking the same antidepressant or a drug for like 10 years, you will get immune to it? Very intelligent question. Yeah, two types of addiction: physical dependence and physiological dependence. अब आप समझे इस चीज का, आपने क्वेश्चन किया है तो मैं टाइम दूंगा। एक फिजिकल डिपेंडेंस है, एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है। हम फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस को आइट्रोजेनिक डिपेंडेंस भी बोलते हैं। आइट्रोजेनिक क्या? आपने एंटी डिप्रेसेंट्स की बात की, मैं बात करता हूँ किसी भी सीवियर किडनी पेन की या फ्रैक्चर किसी को जो है वो हो गया, तो उसमें डॉक्टर ने उसको इंजेक्ट किया, पेन किलर इंजेक्ट किया, तो ऑफ कोर्स वो पेन किलर वो हीरोइन वाली क्लास है ना, ओपिएट से बिलोंग है वो करता है, तो उसको रिलीफ मिला क्योंकि मैजिक ड्रग्स हैं, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पेन किलर हमें जो है वो चाहिए होते हैं सारे। फिर आमना सेम है, चाहे कोई एंटी डिप्रेस वो डिप्रेशन में था, डॉक्टर ने उसको एंटी डिप्रेसेंट प्रेस्क्राइब किया वो ठीक। या अब फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डॉक्टर ने कहा कि आपने फॉर अ वीक और 10 डेज आपने इसको जो है वो लेना है, उसके बाद उसको खत्म कर देना है। अब हमारे यहाँ आपको पता है कि जो सेल्फ मेडिकेशन का रवाज के साथ आता है, तो जब भी कभी उसके बाद में डॉक्टर को जो 1000-2000 फीस देनी जानी है, जो खुद ही जो है उसको ट्राई वो कर लेते हैं सारा। तो वो क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं, ठीक है। सेलुलर फिनोमेना जो है वो अडाप्टेशन की तरफ जो है वो चला जाता है, वो समझता है कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी का, लिहाजा मुझे उसके मुताबिक अकोमोडेट जो है वो करना है। अच्छा, वो करते हैं सारे, और फिर ये होता है कि जो एक इंजेक्शन से उसको फर्क नहीं पड़ता, अगर वो महीना ले रहा है, उसने कहा था डॉक्टर के पास कौन जाएगा, छोड़ो पीछे, मुझे तो अभी भी दर्द हो रही है, इसको लेते रहो, तो वो कंटिन्यू करता है उस ड्रग यूज को। जब वो कंटिन्यू करेगा तो बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है या अडॉप्ट करती है अपने आप को उसके मुताबिक। सर मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ा था, सर आप प्लीज इसकी तनकीद कीजिएगा ये सच है या नहीं है, कि हफ्ते में 2 मरतबा पाबंदी से वीट पीने से माइंड शार्प होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो जबरदस्त है। आपने एक और रिसर्च नहीं पढ़ी? नहीं सर, मैं इससे भी पहले रिसर्च की बात बताता हूँ। मैंने असल में सिर्फ एक पोस्ट देखा था सर, एक पोस्ट फेसबुक पर आया था, एक पेज है वो वीट सेल करता है, तो उन्होंने वो पोस्ट लगाया था कि आप वीट ज्यादा से ज्यादा पियो, ज्यादा से ज्यादा माइंड शार्प होता है। एग्जैक्टली ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा है। मैंने आप इससे पहले कि मैं एक और आपको एक नई न्यूज़ भी दे देता हूँ, ये तो आपने सिर्फ उसी से मुतालिक पढ़ा ना, वीट से, और अगर मैं ये कहूँ कि इसका मेडिसिनल यूज भी है तो मेडिसिनल यूज भी होगा सर, तो ये उससे ऊपर वाली बात है ना कि लोग ऐसा मेडिसिन भी इसको अब यूज करते हैं। Sir, also I've heard that cannabis is legal in US now. ओह अभी आते हैं, ये संभाल के रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर थोड़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मेडिसिनल यूज भी है, डेफिनेटली जब डोपामिन रिलीज हो रहा है तो उसको स्मूथिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट, सेरेनिटी तो मिल रही है। तो ये तमाम ड्रग्स इस फर्स्ट स्टेज को जो यूफोरिया का है या मजे का है वो उसमें से गुजरते हैं। यही तो सबसे डेंजरस पीरियड है, यही तो हनीमून, इसलिए तो उसको कहा जाता है कि वो जो फेज है, मे बी अ मंथ, मे बी 6 months, मे बी अ ईयर, लोग इसको सालों तक जो है वो कंट्रोल और यूज करते हैं, उसका मजा लेते हैं। प्रॉब्लम तो उसके बाद होती है जब वो लाइन जो है वो क्रॉस करते हैं, और जब वो लाइन क्रॉस करते हैं फिर वो टॉलरेंस और कंट्रोल की तरफ आते हैं। लोग वीट पीते हैं कि उनका माइंड शार्प हो जाए, लेकिन मैंने सर काफी सारे ऐसे केसेस देखे, लोग बीच पे जाते हैं, 3 वीट पी के सो जाते हैं वो लोग। सो ब्यूटीफुल। Reality यही है भाई, you know the answer, you know what the people are saying to sell the weed, and you know the reality by people who are taking the weed. So there are two different things. You have व्यक्ति से को मजा कर ही नहीं सकते, they cannot enjoy, उनका mind शार्प होने के बजाय they sleep. That is the reality. So they're just selling things, man. और जेम्स बॉन्ड आता था ना, सिगरेट पी के लड़कियां पटाता था, they were just selling things. असल में तो कैंसर है आगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं अब मेडिकली भी बताता हूँ, दोनों चीजें आपके साथ साथ जो चलेंगी, एंड ऑफ कोर्स 100% यू आर राइट, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन समवन स्टार्ट्स ड्रग्स। अच्छा, होता क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम? प्रॉब्लम तो वहां पर आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं, डायबिटीज जो है वो बड़ी कॉमन सी बीमारी है, ऐसे ही है? सो मीठे तो बहुत सारे लोग खाते हैं, ठीक है ना, कार्ब्स, शुगर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये मना क्यों हो जाती है? कुछ लोगों में मीठा, मीठा तो बहुत जबरदस्त चीज है, शुगर खानी चाहिए, मीठा खाना चाहिए। शायद आपको पता हो जो हमारा ब्रेन है, हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, उसमें फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ऐसा ही है। यही जिसम हमारा इंतजाम ग़िज़ा से हासिल करता है। हमारा जो ब्रेन है माइंडेड, ये सिर्फ और सिर्फ शुगर मांगता है, कार्ब्स मांगता है, कार्ब से वो एनर्जी हासिल करता है।
लेकिन कुछ लोग, अब मीठा जरूरी भी है, लेकिन कुछ लोग जो है कुछ ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो डॉक्टर को मना करते हैं आपने मीठा नहीं खाना, उनके साथ ऐसा क्या? Because they might get high on sugar. They might get high on sugar. Yeah, some people, yeah. Yeah, of course. It's a fact. People eat so many chocolates. आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इसको थोड़ा सा रोक नहीं तो मैं आता हूँ इसकी हाई की तरफ। सो मैं सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन ही किया रहा हूँ, जनरली मेडिकल नहीं है, कि बहुत सारे लोग मीठा खाते हैं, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मीठा मना किया जाता है? Yes. Excuse me sir, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? वो डायबिटिक है, वो डायबिटीज हो गई है, उनको शुगर की डायबिटीज की बीमारी होगी है, क्यों? तो इंसुलिन जो उनकी जनरेट नहीं होती, So उनकी माय मदर इज अ शुगर पेशेंट, आई हैव दैट, उनकी इंसुलिन एक सर्टेन लेवल की इंसुलिन जो नॉर्मल हमारे बॉडी में चाहिए उनकी जो जनरेट होती है वो नहीं बनती ड्यू टू पैंक्रियाज नॉट वर्किंग। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सो कुछ चेंज आई बॉडी के अंदर, यस सर, और वो जो चेंज ने डिटरमिन किया कि जो चीज एक नॉर्मल बंदे के लिए एनर्जी का बाइस बन रही है, अब उस एक बंदे के लिए अब वो प्रोहिबिटेड है, या ही नीड्स टू टेक दैट शुगर इन अ वेरी लिमिटेड बिकॉज़ ब्रेन नीड्स दैट। यस, यही चेंज याद रखिएगा कि जब ये बात कर रहे थे, जैसे यही चेंज इन दो लोगों के अंदर मौजूद है, फिजिकल चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी इसकी वजह से डिटेल में नहीं गया, क्योंकि डायबिटीज में जो शुगर के मरीज हैं उसमें प्रॉब्लम उनकी पैंक्रियाज के साथ होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वो टॉलरेट नहीं कर पाती, उस शुगर को नहीं मेटाबोलाइज कर पाती और उसको शुगर हो जाती है। आसान अल्फाज के साथ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे कि जिसको डायबिटीज हुई है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर ये कहें यार वो फलाना बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तो देखो आज शादी है, नया साल है, तो बर्थडे है, तो चलो लेट्स हैव अ पार्टी, तो अगर वो शुगर लेंगे तो क्या होगा? हालांकि शुगर तो चाहिए ब्रेन के लिए, फिर क्या होगा? नहीं, अगर डायबिटिक्स जो है बर्थडे के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर, शादी के ऊपर इस वजह से ले लेंगे शुगर कि नहीं जी लेट्स हैव इट पार्टी है, तो सॉरी 101 बीमारियां होती हैं हाई ब्लड शुगर की वजह से। अब वो हालांकि उससे एनर्जी मिल रही है, लेकिन सर्टेन ग्रुप्स के लिए वो अब प्रोहिबिटेड है, नहीं लेना शुगर उन्होंने, वो होती लिमिटेड, तो उसकी वजह वो बीमारी है जो उसको हो गई है। इसी तरह जो लोग वीट पीते हैं वो सोशल यूजर्स हैं, बिल्कुल हैं, रहें, लेकिन कुछ ही अर्से में नोबडी नोस, अभी तक कोई ऐसा टेस्ट डिटरमिन नहीं कर सकता कि किसके अंदर एडिक्टिव वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। हिस्ट्री से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चनर बाय द नेम ऑफ केज, एक स्क्रीनिंग टूल है, अब हम डिटेल में जाते चले जाएंगे तो वो डेप्थ में जाएगा, तो देयर स्क्रीनिंग टूल्स है जिससे हम असेस कर सकते हैं कि जिसका जो रिलेशनशिप है विद द ड्रग वो सोशल यूजर वाला है या एक डिजीज रिलेशनशिप है। जस्ट लाइक कोई मीठा खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है या वो डायबिटीज। Sir, I wanted to ask something. There are people take drugs because they feel good. But I have seen people, for example, if they are taking any kind of pills, which normally people would take in parties, they would feel even worse. So beautiful. इसके अलावा इसमें ऐड करता हूँ। आई थिंक वो गड़वाने की बात इधर से किसी ने की थी कि वो 2-3 दिन लगाते हैं तो वो तो बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। अल्कोहल वाले भी ऐसे होते हैं कि अब एक ग्रुप है, पी रहे हैं बियर शियर अल्कोहल ले रहे हैं, वो 2-4 जो है वो पी के तो थोड़ा सा वो टर्न हो रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो कहता था शेर हूँ मैं, लाइक अ मैन, सो वो पूरी बोतल पी जाता है, उसको कुछ नहीं होता। क्यों? Sir, I want to add something. इसी में? No. पहले इसको कंप्लीट कर इसमें ही हाँ, See, I read the book Rumi, 40 Rules of Love, by Rumi. So it was like, alcohol is haram. Why it's haram? Because whatever is inside the people, it comes out after getting high. So if someone is very depressed, if he gets so much high, he becomes more depressed. Yes. And if someone is like whatever reasons are behind that, yeah, it's like that. Yeah, of course, yes. So, तो वो क्या है ऐसा? ठीक है, it's physical phenomena. अगर कोई 1-2 वीट पीता है और उसके बाद वो उसको डिजीनेस शुरू हो जाती है, तो उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। अगर 2 लफ्ज़ बोलूँगा, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, और वो बंदा कि जो आधी बोतल पी गया है, ठीक है, पीने के बाद उसको कुछ नहीं हो रहा, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, आसान अल्फाज के साथ एडिक्शन जो है, इट्स
like an allergy. ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट साइन है कि वो बंदा जिसने शुरू की है अल्कोहल या वीड शुरू की है, वो 4, 5, 6, 7 सिगरेट जॉइंट्स पी रहा है, या वो जिसने अल्कोहल ली है और आधी बोतल पी गया, उसको कुछ नहीं हो रहा, दिस इज द साइन ऑफ अल्कोहलिज्म. दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग प्राउड कि आप देखो ऐसा हरगिज़ नहीं है. जो जल्दी डिजीज की तरफ जो है वो जा रहे हैं, इट मीन्स दे आर सोशल यूजर्स, उनकी बॉडी नहीं टॉलरेट कर पा रही, और अदरवाइज अदर एक्सट्रीम की उनकी बॉडी का टॉलरेंस लेवल कौन सा है, तो वो तो एडिक्शन के ज़मरे में आ रहा है, एसटीडीज के सब्सटेंस या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स के ज़मरे में आ रहा है, तो ज़्यादा डेंजरस है जो ज़्यादा पीने से घूम नहीं रहा. I know you like कि एक होती है कि like आप कितने टाइम तक ले रहे हो, एडिक्शन वाली जो बात आप कह रहे हैं, बट फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ बहुत छोटी सी अगर एग्जांपल लूं, कॉफी. लोग कॉफी पीते हैं एंड यू गेट मतलब फॉर द फर्स्ट 3 hours पीपल विल बी लाइक वेरी मच शार्प, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए, बट इन सम पीपल फॉर द होल डे नेक्स्ट they feel anxious, they feel depressed, they feel sad for nothing, and they will just think why am I feeling sad. So in like in different, and there is I don't know, I've asked many people and few psychologists, they didn't give me any proper reason why people feel different after having such substances. Actually there is a principle by the name of Dieter-Thotter principle. ठीक है, हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट्स, हेलुसिनोजेंस और इनहेलेंट्स. ये 2-4 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन. ठीक है, सो जिसका जो वो अपन डिटेल में नहीं जा रहा, ये क्लासिफिकेशन. अब वो टीचर-थॉटर प्रिंसिपल्स क्या कहता है, व्हाट गोज अप कम डाउन. सो वो कहता है कि जिसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जिस क्लास से है, जब वो विड्रॉल उसको होगा, जब उसके इफेक्ट्स जो है खत्म होंगे, तो जस्ट ऑपोजिट वो फील करेगा. तो जिसने स्टिमुलेंट जब मैं बात करता हूँ तो कोई एग्जांपल दें. स्टिमुलेंट जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? कॉफी, टी, एक्सटेसी, आइस, एम्फेटामाइंस. ठीक है, ये सारा उसमें आता है स्टिमुलेंट्स में. अब ये जो लोग जिनकी ड्रग ऑफ चॉइस ये वाली होगी, जब उसके इफेक्ट्स खत्म होंगे तो दे विल फील डिप्रेस्ड, क्योंकि वो केमिकल जिन्होंने अलर्ट करना था वो एग्जॉस्टेड हो गए हैं, उन्होंने निचोड़ दिया जाके ब्रेन को. ये जो ड्रग्स हैं क्या करती हैं, ब्रेन के केमिकल्स को एनहांस करती हैं, बहुत ज़्यादा उसके बर्स्ट आ रहे होते हैं वहाँ से, और एट अ टाइम जब उसकी जो है डिप्लीशन हो जाती है तो फिर अदरवाइज अदर एक्सट्रीम पे जाके फिर वो डिप्रेस होते हैं. और अगर कोई डिप्रेसिव जो है ड्रग्स ले रहा है, अब डिप्रेसिव ड्रग कौन सी होती हैं? हेरोइन, ओपियम से रिलेटेड जितने भी हैं, बेंजोज, बड़े ट्रैंक्विलाइजर्स फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन ड्रग्स हैं. तो ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं और ये सेडेटिव्स हैं, स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं वो सारी, और ये हेरोइन और उससे रिलेटेड जो भी है, ये डिप्रेस करते हैं. और जब इनका विड्रॉल होगा तो दे विल बी हाइपर एक्टिव, वेरी इरिटेबल, उनको नींद नहीं आ रही होगी, वायलेंट हो रहे होंगे. मतलब ये बड़ी डिफरेंट दुनिया है. आपकी ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच ट्रू. And actually, brain science brings कि brain needs carbs, तो उसको एक certain level of sugar चाहिए, certain level of sugar जो है वो चाहिए. तो उस sugar के लिए उसको फिर वो normal जो carbohydrates हैं वो लेने हैं, refined carbohydrates नहीं, जो आप चीनी की बात कर रहे हैं, बेकरी दूध की नहीं, carbs, उसको जो है वो चाहिए ताकि वो एनर्जी दे. लो अगर विद हाफ एन आवर, अगर 70 मिलीग्राम, आप थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ, तो अगर 70 मिलीग्राम ऑफ ब्लड शुगर आया उसका, अगर इफ इट इज लेस देन 70 मिलीग्राम, तो अगर वो सस्टेन कर रहा है फॉर हाफ एन आवर और वो पहुंच गया 50, तो अगर विद इन 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर उसको ग्लूकोज नहीं दी तो ही विल डाई. सिंपल. तो हाइपोग्लाइसेमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपोग्लाइसेमिया. एंड यहाँ से बड़े प्यारा मैं आप उसको थोड़ा सा उसकी तरफ आता हूँ. शुगर इज अ ड्रग, इट्स आल्सो a drug. मीठा क्यों हम क्रेव करते हैं? Because we are addicted to it. कभी देखे हर कोई कहते हैं यार लेट्स हैव आइसक्रीम, चलो केक खाओ, चॉकलेट. तो क्यों? क्योंकि जो कार्ब्स हैं, याद रखिएगा, ये भी डोपामाइन को स्क्रीन करते हैं. तो वो जो हम जब डिफाइन कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं एडिक्शन को, तो इसमें जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है वो भी एडिक्शन ही का एक पार्ट है. तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटर्स, वो भी एक्चुअली अपनी उसी रिवॉर्ड सिस्टम के साथ खेल रहे हैं.
True. And they need more and more and more and more and more. So, और आप परेशान होंगी कि बाहर ओवर ईटर्स, यहाँ आपको पीछे बात हुई थी, वो तो सिर्फ रिच को डिफेंड कर रहे थे पीपल्स को, कि जो लोग ओवर ईटर्स हैं, जो फूड डिसऑर्डर्स जिनको हैं, वो भी एग्जैक्टली ड्रग एडिक्ट के साथ हो रहे होते हैं, क्योंकि दोनों की जो कॉमनैलिटी है, जो एडिक्शन का पाथवेज है, वो सिमिलर है। दोनों की जो स्ट्रेटजीज है प्रिवेंशन की या ट्रीटमेंट की, वो सिमिलर है। तो उसी को उन्हीं लाइन्स पे डील किया जाता है। आई वाज शॉक जब मैं गया इंग्लैंड और वहाँ पे देखा 3-4 वो बुलिमिक्स जो हैं वो भी उनके साथ ट्रीट हो रहे हैं, उनकी साइन सिम्टम्स प्रोसेस सारा सेम है। तो यस, ये ब्रेन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे काम से।